So as I have already told you, transition elements, the second major group include these elements, these and these. They are called as transition elements. They are called as transition elements since they have variable oxidation states. They share, all the transition elements have these following four properties in common. Four properties in common. The first property is all have variable oxidation states. Oxidation states. All the elements which are present in this group, they don't have their fixed oxidation state. They may have 2, 3, 4 and maximum of 7 oxidation states. Like manganese, Mn, have from +1 up to +7 oxidation state. The maximum variable oxidation state is shown by the manganese. This is the first property. Second property, all are metals have high melting and boiling points. Melting and boiling points. Boiling points, and also have high density. This is the second property. Although there are three properties actually. They are metals at room temperature and pressure. All transition elements are metals. They have high melting and boiling points and also have high density. For example, gold is the most dense metal. सबसे ज़्यादा गोल्ड की डेंसिटी है, which is around 19 I guess approximately 19.5 times heavier than water. So this is the most dense metal, transition metal, or the element heavier than water. Its density is 19.5 gram per centimeter cube. The third property, all elements, ये जो सारे transition elements हैं, make colored compounds. ये थर्ड प्रॉपर्टी है. जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, और देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर देयर एक्वस सॉल्यूशंस आर कलर्ड. सॉलिड स्टेट में भी कलर्ड होंगे. जब आप उनको पानी में डाल के उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, दे विल बी कलर्ड. द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हियर इज the fourth property all transition elements have, that they in the form of metals or their compounds, या तो खुद या इनके compounds act as a catalyst. खुद कैटलिस्ट होते हैं या उनके कंपाउंड जो हैं वो कैटलिस्ट होते हैं. थोड़ी सी डिटेल कि कैटलिस्ट क्या होता है. कैटलिस्ट इज एक्चुअली अ सब्सटेंस. दिस इज अ सब्सटेंस which alters the rate of a chemical reaction and is recovered after the reaction
recovered after the reaction chemically unchanged. This is the particular definition of a catalyst. कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, तेज कर देता है. थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि जब हम ये कहते हैं कि अ कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन, तो उसका मतलब ये होता है इट डज कुछ, इफ सम स्टूडेंट्स थिंक दैट कैटलिस्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, तो दिस इज रॉन्ग. Catalyst actually participates in the chemical reaction, it takes part in the chemical reaction, but this is recovered, I use the word recovered, after the reaction chemically unchanged. It participates in the chemical reaction, it reacts with the reactants, क्योंकि जब तक वो reactants के साथ react नहीं करेगा तो उनको accelerate नहीं कर सकता, उसके rate of reaction को affect नहीं कर सकता. So it participates in the chemical reaction, but it will be called as catalyst if it is recovered. जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो वो वैसे का वैसा केमिकली अनचेंज जो है वो मिल जाता है आपको, तो दैट सब्सटेंस इज टेक्निकली कॉल्ड एज कैटलिस्ट. अब यहाँ केमिकली अनचेंज लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सम टाइम कैटलिस्ट मे चेंज फिजिकली. फिजिकल बाजुकात उसकी जो स्टेट है या फिजिकली कोई प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी अल्टर हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकली वो अनचेंज रहेगा, तो उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं. अब इनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स पहले बताता हूं, या पहले थोड़ी सी ये बात कर ले कि कैटलिस्ट फंक्शन कैसे करता है, और फिर एग्जांपल्स की बात करके इंपॉर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट आखिर पे मैं देता हूं कि व्हाई द कैटलिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं. फंक्शन और द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट, कि कैसे ये ऑफ कैटलिस्ट इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, पार्टिसिपेट भी करता है, केमिकली रिकवर भी हो जाता है, केमिकली अनचेंज्ड रिकवर भी हो जाता है, तो फिर हाउ डज इट एक्चुअली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट के अपने फंक्शन परफॉर्म करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, बट द मोस्ट जनरल बाय विच द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट इज कि कैटलिस्ट ये करता है, एक रिएक्शन हो रहा है, फर्ज कीजिए A plus B is converting into products. This is uncatalyzed reaction. इसमें कैटलिस्ट आपने ऐड नहीं किया हुआ, तो रिएक्शन नहीं हो रहा. अब कोई भी रिएक्शन जो है वो क्यों नहीं होता, बिकॉज इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट इज हाई. रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई. तो दो सूरतें हैं, या तो आप वो एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दीजिए तो रिएक्शन विल टेक प्लेस. समटाइम टेक्निकली दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज EA, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जिसकी बाद में डिटेल से बात करेंगे एक चैप्टर में, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. दिस इज एक्चुअली डिफाइंड एज द एनर्जी required, rather minimum energy required for the reaction to take place. The reaction to take place. वैसे हम डिटेल से भी बाद में बात कर लेंगे एक अलहदा चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, लेकिन यहां पे आई वांट टू गिव यू अ लिटिल बिट हिंट अबाउट द फंक्शन ऑफ द कैटलिस्ट. अगर इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करूं तो इट वुड बी लाइक दिस. यहाँ रिएक्टेंट्स हैं कोई, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और फर्ज कीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी ये एनर्जी रिक्वायरमेंट है. दीज आर एट दिस पॉइंट दे आर रिएक्टेंट्स A प्लस B जो मैंने लिखा हुआ है, और यहां पे ये प्रोडक्ट्स. इसकी डिटेल रेट ऑफ रिएक्शन में करेंगे, यहां पे सिर्फ मैं कैटलिस्ट काम कैसे करता है थोड़ा सा उसका हिंट देना चाह रहा हूं.
अब ये वो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी, दिस वन इज, जिसको मैंने EA लिखा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. Since the energy of activation or the energy required for this reaction is very high, इस वजह से ये रिएक्शन नहीं हो रहा, या हो रहा है तो at a very low speed, बहुत थोड़ी स्पीड है. When we add catalyst to it, जब हम इसको कैटलिस्ट डाल देते हैं A plus B, if this reaction takes place in presence of a certain catalyst, तो the reaction is very fast. अब जैसे मैं शुरू में बता रहा था कि रिएक्शन करने के लिए या रिएक्शन को तेज करने के लिए दो चीजें हैं, या तो एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए या जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको कम कर दीजिए. तो कैटलिस्ट जो है डज नॉट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द रिएक्टेंट्स फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, रादर ये उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है. कैटलिस्ट क्या करता है, अगर आप मैं इनको, इट वुड डू दिस थिंग, दिस वन, ये चीज कर रहा है. ये आप बोलिए कि अनकैटलाइज्ड था, एनर्जी रिक्वायरमेंट वाज वेरी हाई, दिस वाज ए कैटलाइज्ड, सो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस्ड, सो कम एनर्जी पे भी ये रिएक्शन हो जाएगा. तो दिस इज एक्चुअली द कैटलिस्ट डज. कैटलिस्ट ये करता है कि उसकी EA वैल्यू, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है. ये कैसे करता है थोड़ा सा हिंट सिर्फ देना चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में बाद में बात करेंगे. It actually provides the alternate way. Catalyst actually provides the alternate route for the reaction to take place. उससे क्या होता है जी, जो alternate route है, कहिए जी A plus B डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो रहा, तो कैटलिस्ट क्या करता है, इनको एक प्रोडक्ट C में कन्वर्ट करता है, तो C फिर फर्दर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है. द एनर्जी रिक्वायरमेंट A प्लस B की डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा है, लेकिन C बनाने में थोड़ी है, तो फिर कैटलिस्ट ये काम करता है, A प्लस B को मिला के C बना दिया, C जो है वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. अब इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है, पहले थोड़ी सी एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं कि कहां कहां ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे भी, यहां पे सिर्फ मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करूंगा कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जहां पे कैटलिस्ट जो है वो यूज होंगे या होते हैं. रिएक्शंस को डिटेल से आगे पढ़ेंगे, यहां फिर आई वुड जस्ट गिव दी एग्जांपल्स कि कहां आप यूज कर रहे हैं. सबसे पहली एक मिसाल आप पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करो, रिवर्सिबल रिएक्शन कैटलाइज बाय आयरन. आयरन इसको कैटलाइज कर रहा है और अमोनिया बना रहा है. अमोनिया का बनाना फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो दिस रिएक्शन इज बीइंग कैटलाइज्ड बाय फाइनली डिवाइडेड आयरन, एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है. दूसरा रिएक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे भी इज सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन. गैस दिस इज फर्दर स्टिल a reversible reaction to make sulfur trioxide. इसमें V2O5, this is called as vanadium 5 oxide, ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है. देखिए मैंने पहले भी कहा कि ट्रांजिशन मेटल्स खुद कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करती हैं या उनके कंपाउंड, तो यहां पे उनका कंपाउंड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है. थर्ड एग्जांपल, ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, जो प्लांट से ऑयल्स मिलते हैं, ये निकल की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट है, 250 डिग्री टेम्परेचर है, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी और मार्जरीन. इन रिएक्शंस की डिटेल आप आगे पढ़ेंगे. ये रिएक्शन भी, ये एक्चुअली अनसैचुरेटेड होते हैं, ये सैचुरेट हो जाते हैं विद, एक्चुअली रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू सैचुरेट इट. तो इसमें भी निकल जो है एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. इसको हम, इस रिएक्शन के करने को हम हेबर प्रोसेस कहते हैं, जिसकी डिटेल आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसकी डिटेल भी पढ़ेंगे. And this is the making of vegetable ghee from vegetable oils. अब last but not the least,
कि कैटलाइज या कैटलिस्ट यूज करना इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट क्यों है। एग्जांपल्स तो हो गई कि भाई आप अमोनिया बना रहे हो जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज होगा, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेप। घी बनाने के लिए निकल यूज कर रहे हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड फर्दर फिर यूज हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस कैटलिस्ट की क्या है? देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दी कॉस्ट रिडक्शन एंड द प्रॉफिट मेकिंग। अगर उसके एक्सपेंसेस कम हो जाएं तो डेफिनेटली द कॉस्ट ऑन द प्रोडक्ट जो है वो उसकी कम हो जाती है, प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाता है और उसकी प्राइस भी प्रोडक्ट की जो है लेस हो सकती है। सो कैटलिस्ट जो है जो यूज करता है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो सबसे पहले तो इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी। तो कैटलिस्ट का यूज जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को एनर्जी के ऊपर कितना वाई हाउ वो बिग प्रॉब्लम ऑफ द एनर्जी इज नाउ डेज, तो एनर्जी कम लगाना पड़ती है। जो हीट करना पड़ता था उसको अपने किसी प्रोसेस को टू अ वेरी हायर टेम्परेचर, वो उसकी एनर्जी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है बाय द यूज ऑफ द कैटलिस्ट। सपोज अगर एक रिएक्शन 1200 डिग्री सेल्सियस पे होना था तो कैटलिस्ट कैन डू दैट रिएक्शन अप टू 400 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर बात है जो एक्स्ट्रा 800 आपने हीट करना था वो एनर्जी जो है उस इंडस्ट्रियलिस्ट की बच जाएगी, तो उसके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की लेस हो जाएगी। सेकेंड थिंग, सिंस ये कैटलिस्ट जो होते हैं दे कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, तो इट मीन्स कैटलिस्ट की जो परचेजिंग है दिस इज अ वन टाइम कॉस्ट। इफ दे आर प्रॉपरली यूज्ड एंड प्रॉपरली हैंडल्ड, अगर आप इनको बड़ा बेहतर यूज करें, एफिशिएंटली यूज करें, तो वो कैटलिस्ट जो है दैट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन सिंस इट इज रिकवर्ड आफ्टर द रिएक्शन। सो उस कैटलिस्ट की वन टाइम कॉस्ट से जो है वो एक दफा उसकी कॉस्ट आप बर्दाश्त करेंगे और उसके बाद जो है वो बार बार उस प्रोसेस को जो है वो करता चला जाएगा। तीसरी चीज जो है, लेस लेबर विल बी रिक्वायर्ड, वुड बी रिक्वायर्ड। एक प्रोसेस और लेस टाइम, लेबर एंड टाइम ऑल्सो। वो रिएक्शन जो 2 महीनों में होना था या वो रिएक्शन जो 24 आवर्स में होना था तो कुड बी कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ ए कैटलिस्ट इन 12 आवर्स। तो जब आप 12 आवर्स में उसी प्रोसेस को कर रहे हैं तो 24 आवर्स पे लेबर को एम्प्लॉय करना था तो ज्यादा पैसे देने पड़ने थे, तो 12 आवर्स पे आपको पैसे जो है वो कम देने पड़ते हैं। तो दीज आर द 3 फैक्टर्स फॉर विच इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कैटलिस्ट जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ द थिंग इज कि इसीलिए कैटलिस्ट की केमिस्ट्री जो है वो डे बाय डे जो है वो डेवलप कर रही है ताकि बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट जो है वो कैटलिस्ट को जो है वो डिस्कवर किया जाए और उनको इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज किया जाए। एंड आई थिंक फोर्थ एडवांटेज वुड बी लेस पोल्यूशन इज कॉज्ड। कि जब आप बहुत सारी चीजों को एक्सट्रीम कंडीशंस में नहीं करते, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर्स, हाई प्रेशर्स में नहीं करते, अंडर नॉर्मल कंडीशंस कर लेते हैं, तो दे आर लेस पोल्यूशन कॉजिंग।